I greet you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। I hope you are all celebrating Christmas today. आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में आज क्रिसमस मना रहे होंगे। I want to share a Christmas message. आज मुझे क्रिसमस के बारे में एक छोटा सा संदेश आपको देना है। During Christmas, two important things we always remember. क्रिसमस के समय दो चीजों को हम हमेशा याद रखते हैं। One is the star, beautiful star we will hang in every house. पहला जो कि तारा है, जो सबसे खूबसूरत है, जो हम अपने घरों में लगाते हैं। The second thing is we will place crib in our house. और दूसरी जो हम लोग के घरों में लगाते हैं वो है गाय का गोठा। Why we are doing this, my dear friends? तो हम क्यों करते हैं? So first thing is about star. Why we are placing star in every house? तो पहली बात जो तारा है, क्यों हम लगाते हैं हमारे घरों में? During the Bible time, you can see the star always will guide the ways during Christmas time. क्रिसमस के समय में जो तारा था, या फिर बाइबल के समय में अगर हम लोग बात करें तो वो हमेशा तारा हमको रास्ता दिखाता था। The Christmas is the birthplace of Jesus Christ will be guided by this star only. क्रिसमस में जो तारा है वो हमको परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु कहाँ पर जन्म लिया, वो रास्ता हमको बताएगा। Some people were searching for Jesus, where he is that time. This star only guided them. बहुत सारे लोग जब प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ जन्म लिए। Even today when you read the scriptures, Psalms 32 verse 8, the Bible says like this. आज भी अगर हम पढ़े भजन संहिता उसका 32वां अध्याय उसका 8वां वचन में कहता है कि God always want to instruct us and guide us every day, my dear friend. परमेश्वर हमको हर एक दिन में हमको कैसे चलना है और हमारा रास्ता क्या है वो हमको बताते हैं। Many times we are worrying in our heart, who will guide my way? बहुत समय तक हम लोग परेशान रहते हैं कि कौन हमको रास्ता बताएगा। But that's the good news of Christmas, that God himself as a star, he will always guide us in our path. सबसे खुशी की बात ये है कि जो तारा है हमारी जिंदगी में वो हमको रास्ता दिखाएगा। Are you worrying about your future? क्या आप अपने फ्यूचर को लेके, अपनी अगली जिंदगी को लेके चिंतित हैं? Today just believe that God will show the way and you will walk in his path, my dear friend. आज आप बस यकीन करें कि परमेश्वर हमको रास्ता दिखाएंगे और वो हमारे साथ चलेंगे। And secondly, what about this crib? और दूसरी बात जो कि गाय का गोटा है, क्या है उसके बारे में? Whenever I look at the crib, there are some characters will be reflected in that crib. जब भी मैं उस गाय के गोठे को देखता हूँ तो कुछ विशेष बातें वो बताएगा मुझे। The first thing is 3 wise men with some gifts in their hands will be placed in that crib. पहली बात है जो 3 बुद्धिमंत व्यक्ति उनके साथ में जो गिफ्ट उन्होंने लाए थे परमेश्वर के लिए। Always God will be in triune God want to reflect in our life. और हर वक्त परमेश्वर 3 आत्माओं की तरह काम करेंगे। So to reflect that, 3 wise men were sent during the Christmas time. तो वो 3 बुद्धिमंत व्यक्ति को प्रचलित करने के लिए परमेश्वर हमको उस गाय के गोटे को बताते हैं। God always want to reflect him in our life through the heavenly Father, Jesus and the Holy Spirit. और परमेश्वर हमेशा हमारे जिंदगी में 3 आत्माओं को, वो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में प्रस्ताव करते हैं, प्रकाशित करते हैं। This triune God always want to give gifts, precious things in our life. ये 3 दैवी आत्माएं हमको हमेशा बहुत अनमोल चीजें या फिर गिफ्ट से हमको आशीषित करते हैं। First, the heavenly Father want to give Jesus Christ himself as a gift for each and every one of our life. पहला जो स्वर्गीय पिता है वो ही हमको प्रभु यीशु मसीह को एज अ गिफ्ट हमारी जिंदगी में देते हैं। John 3:16 the scripture says like that. यूहन्ना 3:16 में कहता है God himself gave his son Jesus Christ as a sacrifice for each and every one of us. प्रभु परमेश्वर ने अपने ही बेटे को इस जग के लिए दे दिया ताकि हम लोग खुशहाल जिंदगी और पापों में जिंदगी जी सके। He is our gift, my dear friend. वो ही हम लोग का तोहफा है। So that nobody should perish, that everyone should get an everlasting life. सब लोग खुशहाल जिंदगी जिए ताकि कोई भी उस दिन भरी या फिर पाप भरी जिंदगी में ना जिए, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल जिंदगी जिए। The second thing, our Jesus Christ also want to give gift to us.
और पिता परमेश्वर जो कि यीशु मसीह है, वो भी हमको एक तोहफा देना चाहते हैं। The scripture says he so loved us and he gave himself for us. और परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने हमसे इतना प्यार किया। Galatians 2:20 says like that. गलीसियों की पत्री उसका 2:20 में कहता है, Yes, my dear friends. हाँ मेरे प्यारे मित्रों, Whenever we call Jesus Christ, you should understand that he gave himself for me. So when whatever I can ask in his name, he will provide for me. जब कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब हमको उसको बुलाते हैं, तो हम यकीन करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को हमारे लिए दिया है। The third is the Holy Spirit want to give gifts in our life. और तीसरा है जो कि पवित्र आत्मा, वो हमको भी हमारे जिंदगी में तोहफे देना चाहता है। So man cannot able to communicate with God before Jesus Christ appeared in this world. तो पहले हमारे जिंदगी में हम लोग एज ए ह्यूमन होने के नाते हम लोग परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे। But after the Holy Spirit was showered upon us, we can able to communicate with God. बट जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पहाड़ पर हम लोग के बीच में उतरा, तब हम उसके बाद से हम परमेश्वर से हम लोग बात कर सके। Until the Holy Spirit give the gifts to us, we will be an ordinary people. जब तक परमेश्वर हमको वो तोहफे नहीं देंगे, हम लोग साधारण इंसान रहेंगे। But after we receive the gifts from the Holy Spirit, we can also reflect God through our life. पर जब हमको पवित्र आत्मा हमको तोहफों से भर देगा, उसकी आशीषों से भर देगा, हम उसको हमारी जिंदगी से दिखाएंगे। Many people will receive healings, miracles, the revelations through the Holy Spirit. बहुत सारे लोग उसकी प्रकाश को, उसकी ज्योति को देखेंगे हमारे द्वारा। And another thing in the crib, we will always see the shepherds will carry some sheep in their hands. और दूसरी बात जो हम गाय के उस गोठे में देखते हैं, वो है कि जो चरवा है, जो बकरियों को लेके अपने उस गोठे में खड़े रहते हैं। Why these ordinary people also welcome to Christmas? तो क्यों इन साधारण व्यक्तियों को उस क्रिसमस में क्यों बुलाया है? That time God revealed in my heart that God loves everyone uniformly and equally. तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं सभी लोगों से, सभी इंसानों से एक जैसा प्यार करता हूँ। Many times we are thinking that these people are very wise people. I am an ordinary fellow. Or whether God will love me. Many questions will be there in our heart. बहुत समय तक हम सोचते रहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बुद्धिमंत है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक बहुत नीचे तल का व्यक्ति हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे जिंदगी में आते रहेंगे। But the scripture says in 1 Corinthians 1:27 like this. पर परमेश्वर का वचन बताता है, पहली कोरिन्थियों की उसका वचन में प्रभु कहते हैं, To shame the wise, God wants to choose the foolish people in this world. बुद्धिमंत को लज्जित करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने उन व्यर्थ लोगों को चुना है। Many times we are thinking that we are so weak, but God will choose such people to shame the strong people. बहुत समय तक हम लोग सोचते, या फिर कई बार हम लोग सोचते हैं कि वो बहुत ताकतवर है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन कमजोर लोगों को चुनूंगा ताकि वो सर्वशक्तिमान लोग जो कुछ को समझते हैं वो निर्लज हो। May God welcome one side wise people, on the other hand God welcome even the ordinary shepherds during Christmas time. इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने एक साइड में उन बुद्धिमंत व्यक्तियों को चुना और दूसरे साइड में उन साधारण व्यक्तियों को जो चरवाहे थे उनको चुना। You may think in your heart that there is no good clothes, there is no good wealth in my life. Are you worrying in your heart? Don't worry. It's Christmas is for everyone. हम लोग सोच रहे होंगे, या फिर कई कुटुंब सोच रहे होंगे कि मेरे पास पैसे नहीं, अच्छे कपड़े नहीं है, मैं आनंदित नहीं हूँ। ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि क्रिसमस हर सबके लिए है और परमेश्वर उनकी जिंदगी में जो वो चाहते हैं वो सब देंगे। Man may forsake you, but God will never forsake you, my dear. इंसान भूल जाएंगे कि परंतु पिता परमेश्वर कभी भी नहीं भूलेंगे। That's a good news of Christmas. यही वो आनंद क्रिसमस के बारे में आनंद दर्शाएगा, वो ही एक आनंद की बात है। God always want to direct your path. प्रभु परमेश्वर हमेशा आपको रास्ता दिखाएंगे। God always want to add gifts in your life. परमेश्वर हमेशा आपकी जिंदगी में नए नए आशीषों को दाखिल करेंगे। God always want to choose even the ordinary people so that God can use anyone mightily during our lifetime. और प्रभु परमेश्वर उन सभी को चुनेंगे जो अपने आप को कम समझते, ताकि वो अपने जीवन में से बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार कर सके और अपने नाम का गौरव कर सके। Shall we pray to God, hoping this
statements in our heart and pray to God Almighty. आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय को खोलेंगे और अपनी बातों को प्रभु से कहेंगे। Gracious Heavenly Father, प्यारे पिता जिंदा परमेश्वर, I don't know how many of you are with great worries and problems watching this program today. मुझे पता नहीं पिता परमेश्वर के कितने सारे लोग उस दर्पण में रह के पिता परमेश्वर ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। But Lord, we understood very clearly about the meaning of Christmas. पर पिता परमेश्वर हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि क्रिसमस असल में होता क्या है। Lord, please remove all the worries about their future, Lord. पिता परमेश्वर उनकी सारी तकलीफें और चिंता को आप निकाल दे। Heal their sickness, Father. उनकी सिकनेस को आप आशीषित करे और निकाल दे पिता Let परमेश्वर, them receive supernatural health in Jesus' name. और अद्भुत तरीके की उनके जीवन में आपने उनको हेल्प दिया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। Some people are worrying in court cases. Lord, let every problem be solved in Jesus' name. कुछ लोग पिता परमेश्वर उनकी कोर्ट कचहरी को लेके पिता परमेश्वर वो चिंतित है, वो सारी चिंता आप हटा दे पिता परमेश्वर। Pour your peace in their home right now. आपकी शांति उनके जीवन में आप डाले पिता Let परमेश्वर। your blessings multiply in their home in Jesus' आपकी name. आशीष दुगनाई से उनके जीवन में पधारण करे पिता Let their परमेश्वर। children be blessed in Jesus' name. उनके संतान आशीषित हो पिता परमेश्वर। Whatever needs in their life be provided in Jesus' name. उनकी सारी जरूरतों को आप पूरी करने की ताकत रखते पिता परमेश्वर। Let them celebrate a joyous Christmas, Lord. सभी लोगों को अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर एक आनंद तरीके से इस क्रिसमस को मनाने के लिए पिता परमेश्वर आपकी सहाय और मदद करें। Thank you, Jesus, for answering our prayer. धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर We देने give के you लिए। all the glory and honor. आप ही को हमेशा हम महिमा और धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। God bless you. गॉड ब्लेस यू। Merry Christmas. मेरी क्रिसमस Happy New Year 2020. एंड हैप्पी न्यू ईयर 2023।